फिर कोई इंपॉर्टेंट था नहीं उसमें, रिएक्शन बैलेंस था इसलिए मैंने डिलीट कर दिया था उसको। आज हमारे पास है नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोजन, 9th यूनिट। सो वी ऑलरेडी नो अबाउट द हाइड्रोजन दैट एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1। ओके दिव्या, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन का मॉक पेपर है वो आपको सेंड कर दूंगा मैं, है ना। Atomic number 1, general electronic configuration 1s1, number of proton in hydrogen 1, number of electron 1 and number of neutron 0। जनरली अपने पास जो हाइड्रोजन है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1 एंड न्यूट्रॉन 0। इट्स ऑल्सो कॉल्ड प्रोटियम, also called protium। Hydrogen is non-metallic in nature, and inflammable air। It's also called inflammable air। Inflammable air, also called inflammable air। Non-metallic in nature, inflammable air। Okay, that's the general properties of hydrogen। Hydrogen atomic number 1, 1s1 configuration, its name is protium and also called inflammable air। It's non-metallic in nature। Now the most important thing, that the position of hydrogen in periodic table। ओके, हेडिंग क्या अपना आज का, यूनिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। रीजन क्या है अपने पास, बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज में रिजेम्बलेंस शो करता है एल्काइली मेटल के साथ और कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर शो करता है हैलोजेंस के साथ। ठीक है, तो हाइड्रोजन का कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, हाइड्रोजन की पोजीशन को इजीली हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हाइड्रोजन जो है अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो करता है। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट पॉइंट, यूनिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। और यूनिक पोजीशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, तो उसको हमने पीरियोडिक टेबल से बिल्कुल अलग रिमूव करके सबसे टॉप पे लेफ्ट साइड में इस तरह से हाइड्रोजन को अलग शो करते हैं। देन हम यहां से अपना पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी यूनिक पोजीशन होती है अपने पास। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हेडिंग नोट करें, रिजेम्बलेंस with alkyl metals or similarities with alkyl metals। Similarities with alkyl metals। First point, electronic configuration। Electronic configuration, like alkyl metals, hydrogen also shows NS1 electronic configuration। NS1 electronic configuration, for example hydrogen electronic configuration 1s1 and the alkyl metals lithium 2s1, sodium 3s1, potassium 4s1। So hydrogen shows the similar electronic configuration like alkyl metals। The first point है, first similarity with alkyl metals, electronic configuration। Like alkyl metals, hydrogen also contain one electron। Like alkyl metals, hydrogen also contain one electron in its outermost orbit। Second, oxidation state or valency। Oxidation state, B point, oxidation state or valency। The general oxidation state of hydrogen +1,
लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था हमने. जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन +1 and alkyl metals also shows +1 oxidation state. Okay, so hydrogen also shows similarity with alkyl metal in case of oxidation state or valency. Then you note like alkyl metals, हाइड्रोजन वैलेंसी 0 नहीं होती है हाइड्रोजन का, 1 वैलेंसी है बिकॉज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 अभी स्टार्ट हुआ है, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है. फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं सिमिलरिटीज विद एल्काइली मेटल्स. ठीक है, हाइड्रोजन शोज सिमिलरिटी विद एल्काइली मेटल्स. तो क्या क्या सिमिलरिटी शो कर रहा है एल्काइली मेटल्स के साथ? फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Like alkyl metals, it also contain 1 electron, so its electronic configuration NS1, 1s1, 2s1, 3s1, like this. Second point, oxidation state or valency. Like alkyl metals, hydrogen also shows +1 oxidation state. +1 oxidation state in its compounds. +1 oxidation state in its compound. +1 oxidation state in compound of HBr. Suppose HBr, then Br is more electronegative than hydrogen. So sharing electron move towards the Br, it possesses negative charge and hydrogen positive charge. When break this bond, then H positive and Br negative. This positive charge indicate the oxidation state of hydrogen. So hydrogen generally shows +1 oxidation state like alkyl metals. For example, lithium bromide, when bond dissociate, then lithium positive ion and bromide negative ion. Okay? So like alkyl metals, hydrogen shows +1 oxidation state. Third point, electropositive in nature. Electropositive. Oxidation state and oxidation number, same thing. Electropositive character. Electropositive character, like alkyl metals, hydrogen no, it's not necessary. In case of hydrides, hydrogen exhibit -1 oxidation state. ओके, बट इन स्पेशल केसेस, हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन का -1 ऑक्सीजन स्टेट है. अदरवाइज जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +1, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर +1. सो हम जनरल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे यहां पर सिमिलरिटी शो कर रहे हैं. वैलेंसी ऑल्सो 1, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, सो इट्स वैलेंसी 1. ओके, यस. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, like alkyl metals, hydrogen also donate its one electron and convert into hydrogen ion. Hydrogen easily donate its electron and convert into hydrogen ion like alkyl metals. Alkyl metals के केस में भी क्या हो रहा है? Li positive then electron, Na positive then electron, because these are electropositive elements. Electropositive elements means elements which easily donate their electron, called electropositive elements. So hydrogen is also electropositive elements. When it's bonding with highly electronegative element, then it's donates its
electron and possess positive charge. So it's called electropositive in nature. Next point, combination with non-metals. Combination with non-metals. Combination with non-metals. Like alkyl metals, hydrogen also combined with electronegative elements, or non-metals such as oxygen, halogen and sulfur. For example, hydrogen combined with oxygen then form H2O. Like alkyl metals, lithium oxide, sodium oxide, potassium oxide. Oxygen is electronegative element. Alkyl metals easily electronegative element के साथ रिएक्ट कर रहा है. सेम हाइड्रोजन भी क्या कर रहा है? नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है. ठीक है? लाइक सल्फर या हेलोजन, HCl, LiCl, NaCl, सल्फर H2S, Li2S, Na2S. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नॉन मेटल के साथ इजीली रिएक्ट करता है एल्काइली मेटल्स की तरह. ये भी हमारे पास क्या है? सिमिलरिटी है प्रॉपर्टीज में. नेक्स्ट, लिबरेशन एट द कैथोड. नेक्स्ट है लिबरेशन एट द कैथोड. लाइक हैलाइड्स और एल्काइली मेटल्स, लिबरेशन मीन्स डिपॉजिट. जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, कोई भी सेल लिया उसमें जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो जो मटेरियल होता है वो एनोड और कैथोड पे किसी में डिपॉजिट होता है. ठीक है, दैट कॉल्ड लिबरेशन. ठीक है, लिबरेशन एट द कैथोड. Like halides of alkyl metals, hydrogen halides, liberated hydrogen at the cathode when its aqueous solution is electrolyzed. Aqueous solution is electrolyzed. Like this electrolytic cell, anode and cathode. And electrolytic solution is aqueous solution of HCl. Then current pass in this solution, then hydrogen H positive ion and Cl negative ion. Then H positive ion move towards the negatively charged cathode and Cl negative ion move towards the positively charged anode. ठीक है, हैलाइड्स मींस हैलोजन के साथ बॉन्डिंग के फॉर्म में, HCl, HBr, HI, दैट्स कॉल्ड हैलाइड्स. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? सेल यूज में लिया हमने यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के फॉर्म में HCl है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के फॉर्म में क्या है अपने पास? HCl. ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस के फॉर्म में HCl सॉल्यूशन है, एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड्स हैं, उनको कनेक्ट कर दिया हमने. इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट किया, दैट्स कॉल्ड एनोड, और नेगेटिव पॉइंट से अगर इलेक्ट्रोड कनेक्ट करेंगे देन कैथोड.
और इन इलेक्ट्रोड्स को यहाँ लगा के अपन जब करंट पास करते हैं तो HCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और H पॉजिटिव आयन जो है वो लिबरेट होगा किस पे, कैथोड पे, क्योंकि H पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज जो होता है वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। तो हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा और Cl पे नेगेटिव चार्ज, देन इट्स मूव टुवर्ड्स द एनोड। ठीक है, सो हाइड्रोजन गैस लिबरेट एट द कैथोड। ओके, तो यही पॉइंट हमने यहां पर लिखा है कि एल्काइली मेटल्स जो होते हैं वो भी कहां पर मूव करते हैं, कैथोड की तरफ लिबरेट होते हैं या कैथोड के ऊपर मूव करते हैं। वैसे हाइड्रोजन का लिबरेशन भी कहां पर होगा, कैथोड पे होगा। तो ये हमारे पास कुछ सिमिलरिटीज हैं एल्काइली मेटल्स से। देन डिफरेंसेस फ्रॉम एल्काइली मेटल्स, अगर सिमिलरिटीज हैं तो कुछ डिफरेंसेस भी हैं जिसके बेसिस पे हम इसको प्रॉपरली फर्स्ट ग्रुप के अंदर प्लेस नहीं करते हैं। तो क्या अपने पास डिसिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, तो हेडिंग नोट करो, डिफरेंसेस फ्रॉम एल्काइली मेटल्स। हाइड्रोजन shows some dissimilarities with alkyl metals or differences with alkyl metals. First point, hydrogen is non-metal. Hydrogen is non-metal, while alkyl metals are metallic in nature. Second point, hydrogen does not contain neutrons on its nuclei, while alkyl metal atoms contains neutrons. Third point, the oxides of alkyl metals are basic, while oxide of hydrogen is neutral. ठीक है, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं कि एल्काइली मेटल ऑक्साइड्स लाइक सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, लिथियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होगा। रीजन, अगर सपोज करो सोडियम ऑक्साइड को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, देन इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, NaOH का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर LiOH होगा या KOH होगा, तो हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। सो दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, वेयर एज वाटर मॉलिक्यूल और H2O इज न्यूट्रल। ठीक है, H2O का ना तो एसिडिक नेचर है ना बेसिक नेचर, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, कई जगह पे हम इसको एम्फोटेरिक नेचर भी बोलते हैं क्योंकि ये प्रोटॉन गेन भी कर सकता है और प्रोटॉन को रिलीज भी करता है। ठीक है ना, तो एम्फोटेरिक नेचर भी बोल सकते हैं इसको। तो H2O एम्फोटेरिक है, बट अदर जो मेटल ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर कैसा होता है, एल्काइली बेसिक नेचर होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन इज डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन इज डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, while alkyl metals are monoatomic। देखो हम यहां पर जब भी रिएक्शन लिखते हैं तो हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं हम, H2,
ओके, बट सोडियम कैसे लिखते हैं अपन रिएक्शन में? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रीजन क्योंकि मेटेलिक फॉर्म में होता है, ठीक है, तो मोनो एटॉमिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बट हाइड्रोजन कैसा होता है? हमेशा डाई एटॉमिक के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट पॉइंट, in case of hydrides, in case of hydrides, case of hydrides, hydrogen shows -1 oxidation state. Hydrogen shows -1 oxidation state. But alkali metals always shows +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एल्काइली मेटल्स का कोई एक्सेप्शन केस नहीं है, हमेशा उनका ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा? +1। बट हाइड्रोजन जो होता है वो नॉन मेटेलिक होता है, तो हाइड्राइड्स के फॉर्म में अगर हाइड्रोजन है देन उस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर कितना होगा? -1, ठीक है। बट मेटल्स जो होते हैं, एल्काइली मेटल्स है, उनका ऑक्सीजन नंबर हमेशा कितना होगा? +1, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ डिफरेंसेस हैं, डिसिमिलरिटीज हैं, इसलिए हम हाइड्रोजन को एल्काइली ग्रुप के अंदर प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। अब सेकंड हेडिंग नोट करो, सिमिलरिटीज विद हैलोजेंस। तो हैलोजेंस के साथ क्या सिमिलरिटीज है हाइड्रोजन का? सेकंड सिमिलरिटीज शो कर रहा है हैलोजेंस के साथ, सिमिलरिटीज विद हैलोजेंस, सिमिलरिटीज विद हैलोजेंस। फर्स्ट, electronic configuration, electronic configuration, like halogens, hydrogen has one electron less than the stable configuration of one electron less than the stable configuration of the nearest inert gas. For example, halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Fluorine configuration 2p5. Next inert gas neon. Configuration क्या है? 2p6. कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए रिक्वायरमेंट? 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। क्लोरीन 3p5, 3p6 ऑर्गन, only 1 electron required for gaining nearest inert gas configuration, ठीक है। Same halogens, hydrogen, atomic number electronic configuration 1s1 and nearest inert gas helium configuration 1s2, only 1 electron required for acquiring nearest inert gas configuration, okay. Second point, electronegative character, like halogens, hydrogen also have a great tendency, hydrogen also have a great tendency to accept one electron to form hydride ion, अभी नोट किया था हमने कि हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होगा, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड, इन दैट केस हाइड्रोजन
एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू H नेगेटिव आयन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट। Like halogens, hydrogen shows -1 oxidation state. Like halogens, hydrogen shows -1 oxidation state. Next point, like halogens, hydrogen is also diatomic. हाइड्रोजन इज ऑल्सो डाइएटॉमिक। तो देखो हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों का एटॉमिसिटी कितना होता है, 2 होता है। हेलोजन भी Cl2, F2, Br2, I2 डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा, एंड हाइड्रोजन ऑल्सो फाउंड इन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट, like halogens, hydrogen is also non-metal, and last point, like halogens, hydrogen mainly combine with non-metals like silicon, nitrogen, carbon, oxygen। फॉर एग्जाम्पल देखो CH4 और हेलोजन क्या बनाता है, CCl4। सिलिकॉन हाइड्राइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो इनके साथ सेम सिमिलरिटी शो कर रहा है। अब फटाफट 2 पॉइंट डिफरेंस की ओर लिख लो, फिर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। तो हेडिंग नोट करो, डिफरेंसेस फ्रॉम हैलोजेंस। फर्स्ट पॉइंट, ऑक्साइड ऑफ हैलोजेंस आर एसिडिक। Oxides of halogens are acidic, while oxide of hydrogen is neutral. Oxide of hydrogen is neutral. Second, hydrogen does not contain neutrons. Does not contain neutrons। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एल्काइली मेटल और हैलोजन के साथ सिमिलरिटी भी शो करता है और डिससिमिलरिटीज भी शो करता है। इसलिए हाइड्रोजन को इन दोनों ही ग्रुप में प्लेस नहीं किया, और उसके लिए अपन एक यूनिक पोजीशन डिसाइड की है। लेफ्ट साइड में टॉप मोस्ट कॉर्नर जो है उस पर हम हाइड्रोजन को प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट क्लास में इसके आइसोटॉप्स करेंगे, देन हम जो है इसके वाटर की प्रॉपर्टीज नोट करेंगे।